हर मुद्दे के कई पहलू होते हैं और वो सामने आते हैं जब एक सकारात्मक चर्चा होती है। एक विषय तो हमने चुन लिया है, पर उसके अनेकों पहलुओं पर चर्चा करेंगे देश के चुनिंदा युवा मस्तिष्क। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं हमारे अगले खंड की, जो है पैनल डिस्कशंस ऑन इंटरनेशनल एंड न्यू एज इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। सिक्किम। On the event panel discussion, and for this year topic given to me is international and new age Indian entrepreneur. Thank you. Welcome, Yogesh. I'll be moderating your thoughts and opinion. So first of all, I would like you to say, what is entrepreneurship? Entrepreneur is doing a business by taking a financial risk. Everything, every new innovation, every new discovery come when people take risks. So it is important to take risks. So I suggest to youth to come forward and take more risks to gain a more success. So what if youth take up service job instead of entrepreneurship? What is the disadvantage? What is the loss they suffer? By doing a job, one father or mother, he start with a by doing a job, after he retired, he again come to the zero. But if he have done a startup, after he retire or after his end, his child should not have to start from zero. It will be boost for her child, or it will be boost to country also. So what is your idea about international entrepreneurship? And who do you know some of them, famous names? International entrepreneur means to do a business outside the national boundary. There are many factors which decide a international entrepreneur. One among these is relation among countries. We know more than 100 apps are banned by Indian government. It is due to the Indo-China relation. So in entrepreneur, the main focus is, especially in international entrepreneur, the home country and international country. It depends on it to, by banning such a app, our youth get more opportunity to develop an app and work for it. And some other factors are global factor, which include a corona pandemic. In this period, whole country need a vaccine, whole universe need a vaccine, masks, sanitizer. So those entrepreneurs who are working on it get a good opportunity to develop their goal. What are the things that you require what you think are most essential for entrepreneurship? Can you just go on for entrepreneurship just after your simple BA or MA degree, or what is required? To do entrepreneur, there are three things required. One is friends, families, and fools. Fools, I'm not joking. Fools means a person who invests on our entrepreneur. So how about skills and the capital and all those things? What about skills? Is India doing anything for younger generation's skill program to upgrade their skills for entrepreneurship? Being a representative from Sikkim, I am happy to announce just a few months ago, our Honorable Chief Minister had announced a very good initiative, startup scheme, which is going to cover all sectors, from poultry to service to hospitality. So such type of program is done by state government, which also include a skill development program. And from a national government, there are a lot of program which the government has sanctioned, but due to some reason, it is not had been implemented at the ground level. But I feel in future it will be implemented in a ground level too. Some of the schemes are, one is Atal Mission, Make in India, and
55 minutes loans. Such type of scheme has been launched by India government, and most important is Atmanirbhar Bharat. From this, government has sanctioned so much of money to the youngsters, but it is our responsibility to come forward and take that benefit, because government is not going to bring in your home and invest you. It is our responsibility because it is for us. So I suggest from this also ki used to come forward, make a project and approach to the government. Thank you. How do you think entrepreneurship can make India Atmanirbhar or self-reliant? Being a country with the highest population, our Honorable Prime Minister usually used to say, with a million problems, there are billion minds. So, from the entrepreneur, people can create job, not get in a job. One entrepreneur can involve more than 10 to 20 people in a job. So, being the country with a major problem as unemployment, through the entrepreneurship, people will get more job in the country. So if we go for Atmanirbharta, self-reliance, and entrepreneurship within the country, so do you think we will have no relation with other countries and no export-import, or what do you think will happen to young India? India being the country, till now, there are few and successful entrepreneurs in a country. But what I feel is, like the foreign country, till now, we are not able to compete with them. So, to the Atmanirbhar Bharat, government is providing financial and moral support to the person or a youth who is trying to be involved in entrepreneur. So, if they succeed, they can go abroad too, which can boost to them and to country also. As a moderator, I would like to say that you can always buy raw material, sell raw material for your business, isn't it? So can you name some of the, entrepreneurs or entrepreneur, things that are going on in Sikkim? Something by youth here. Yes, in your state. In my state, just one among is Diwakar Basnet sir. He is also an entrepreneur, because entrepreneur does not mean you have to make an infrastructure, you have to build big infrastructure. Entrepreneur means take risks. There should be a circulation of money directly or indirectly. Just Mark Zuckerberg, he does not have to do anything now. He have work hard now. We are giving him money, we are advertising. So, Diwakar Basnet sir is one among him. And there are a lot of entrepreneurs, especially in Sikkim. People are more involved in rural homestay. Being a state with a tourism sector, our state has more people involved in a tourism sector. So, one name is Diwakar Basnet sir. Okay. Now, as a young person, do you think you would have gone for entrepreneurship or service? So I would prefer to be entrepreneur, because I can involve more people, I can provide them a job, rather than if I involve in a job, again after my retirement, I have to start from a zero. Why do you think we are focusing on youngsters most when we talk of entrepreneurship nowadays? Why? India being a country where 1/5 of the population is from 15 to 24 years of age, and 65% of the people are below at the age of 35. So, being a country whose average age is in 27 to 29, so it is a high priority, youth should come forward. Yes, youth should come forward because they are the future of India. So if they start entrepreneurship, we will certainly become self-reliant one day. So we are doing this. No.
Acha, then can you say what are the things in which we, if we go ahead, we need more skill and capital for entrepreneurship? Skilled, Suggest some of the, examples, cite some. skilled is one among it, because entrepreneur, there are a lot of sector of entrepreneur. Some involved in a service sector, some involved in a hospitality sector, some involved in a infrastructure sector. Especially in the field of infrastructure sector, they need a more skilled people to move it forward. How can an entrepreneur, young entrepreneur, help others? Young entrepreneur develop an attachment faster than the other, being old. Because being a young, we are not involved with the more responsibilities. Because the old people, especially who cross 35, 40, they are involved in a responsibility, so they, due to some reason, they can't focus on it. So being a young, if we get involved in an entrepreneur, we can give our 100%. You can provide jobs to others, no? That is how you can mostly help. Acha, if, we don't start entrepreneurship now, what will happen to our India? If the youngsters don't take up that, how will it help? I mean, it will harm India. From past decade, business in our country are handled by few high-profile people. So, if we don't come forward, then those people who are already involved, they will occupy all the status, all the all the business. So we should come forward, because I have already said government is providing a lot of facilities through different startup schemes, different skilled schemes, and so on. That is good, but because when we take up entrepreneurship, we are the masters and we can provide to others, otherwise we are the servants, So what sort of business, I asked you previously also, is more suitable for Indian youngsters? What type, yes? Business depend on the situation. In Corona period, in the Corona time, the people, the entrepreneur who work in the field of masks and sanitizer get more opportunity. So I don't preferably suggest, look after the situation, look after your talent, then go forward. Do you think girls should also go for, entrepreneurship, or is it only the men? No. Girls should also come forward to the entrepreneur, because talent is available to all. All have a talent. So if the girl will also come forward, then unitedly, girl and boy, we can make our country very high. So are they already into this type of business, and what are they producing, manufacturing, even in Sikkim? Especially in Sikkim, already I have said that most of them are involved in a tourism sector, but also girls of the Sikkim are mostly have involved in a design sector. I have seen in design sector they are more involved. Similarly, some are taking infrastructure too. So altogether, girl are also involved in all type of entrepreneurship. Okay, they're mostly into garment and anything else, all the export, import type of thing. So do you think the farmers, agriculturists who are now totally confined to their, land and agriculture, they should also do something like this? They should have some business, side business, some entrepreneurship their children should have? Or they should continue with agriculture? Agriculture is some type of entrepreneurship too. So they are more skilled on that field. So I suggest to especially the farmers to work in farming too, but with the new innovative ideas, so that they can produce more.
So whatever they produce after that, what is it that they can do? Can they do something of their produce instead of just going to sabji mandi and marketplace and just sell off, dispose off? What else can be done with the agriculturist produce to make them richer, uplift the economy and India, make it more Atmanirbhar and rich? In every village or a town, government has created a different cooperative sector. So cooperative means the people of the village, they unitedly make one association and run it. So I suggest they unitedly sell it to a higher market rather than a middleman, so that they can gain a good profit from it. Also, if their production is more, they can turn that raw material and sell it further. Have you heard of anything like processing and business and preserving? Anything like that? Processing food, preserving? Any preservation factory in Sikkim? I guess in Sikkim, regarding preservation factory, there are small entrepreneur like bread making. They use this preservatives, and it will be used in a hotel sector, tourism sector. They have this fruit preservation factory in Singtam, and they have many more like that. No? So farmers sell it. Okay, anyway. So the people in India are mostly said to be, say, the marginalized people are there, then middle class and poor people. So what about them? How can they start their business? If they have no money, how do they go in for it? Okay, for money already I've mentioned, Yeah. if they have the talent, through a startup scheme, government is providing fund. Also through Atmanirbhar, also different bank are providing a subsidized loan to such type of entrepreneur. Loan, okay. So with loan, they make the capital out of that and they produce, things. Okay, can you name anybody who has been very successful, any Indian entrepreneur? Not now very young, but once upon a time, any age old. Ritesh Agrawal. Okay. He is the founder of Oyo. Okay. He has very well planned and make this company Oyo, because now it is said that our world has been contracted. It means with the ease of the transportation, with the transportation being a cheap, more people travel here and there. So he has very well planned and make a company Oyo. What is the advantage of being Atmanirbhar? If you are dependent on yourself, our country is dependent on itself, what is the benefit? Why be Atmanirbhar? First, it will help country to be a self-sufficient. Also, it has a long-term impact. It will help to us as a long term. So this is it. Now we've heard him, and he's wonderfully presented why youth should take to entrepreneurship and how Indian youth will make India Atmanirbhar by taking up different business of their choice, getting skilled, and those who do not have capital, how they get loans subsidized from banks, and how the startup scheme started by Prime Minister Narendra Modi is there, which is being pursued in Sikkim by Chief Minister P.S. Tama, and how men and women can do it at par. So thank you. Punjab. Greetings, ladies and gentlemen. Today we have come over here for a very sterling panel discussion. My name is Sahas Ramal. We have Madam Gurkamal, we have Madam Gurveen, we have Madam Garima, and we have Mr. Deepak for this very sterling panel discussion. I hope this turns out to be very lucrative for all of us. Today, on this very day, I am remembered of Martin Luther King Jr., where he said, "To other countries, I may go as a tourist, but to India, I visit as a pilgrim." That's the power of our nation, and that's the essence of this very beautiful nation, India. But
On this very minute, on this very second, on this very moment, we have 7.8 billion people living on this planet. And those 7.8 billion people, 60% of those population is actually employed. Now, let me just squeeze it down further a bit more. We have 37% of the world's brain from India of the 7.8 billion people. Furthermore, if we squeeze it down, but in India, the worst part is that we have only 5.44% of the research output. Further squeeze it down, the employment population rate in India is only 3.84%. So let's just be honest, there is some confusion, ladies and gentlemen, which apparently we are facing today. Because at some point, we are talking about a $5 trillion economy. And at the same point, we are super poor. So we cannot be super poor and super power at the same time. But I am still remembered of our Prime Minister Manmohan Singh ji, the great economist, when in 2008 he had welcomed all the new MPs in the wonderful parliament and he had said, the youth is hungry, the youth is impatient, the youth needs stability, the youth wants to get its hands soiled because it wants money. So we hope that this panel discussion will be very, very wonderful and productive as well. Madam Gurkawal, what is your point of view on this? Well, thank you, sir. When we talk about youth, youth of our country is passionate. The other day I was reading an interview of Jeff Bezos. He is the founder of Amazon. And he said a very beautiful thing, that we all have passions in our lives. And we don't choose our passions choose us. But we need to be alert to them because sometimes what happens is that our intellectual, insecure selves overrule our passions, and that needs to be guarded against. If you have a passionate idea, you already have one foot into this world of entrepreneurship. If you have heard about the PAD project of the village Kathukheda, it's in district Harpur, around the outskirts of Delhi. The women there, they did not have access to affordable sanitary pads. The girls had problems, they were dropping out of schools, and eventually the girls, they came together, they raised funds, and they started manufacturing and marketing their own sanitary pads. These girls are the entrepreneurs. The youth is the entrepreneur of this young India. Oh, very wonderful. I did get your point over here, but to me, I have one question as well. That is passion only the most imperative thing that you want to say for an entrepreneur to become, for a startup to work, or is it more to it? Well, I talked about passion because that gives you the idea, but that's not enough. I said one foot into this world of entrepreneurship is because of your idea, is because of your passionate idea. But there are other aspects as well. The most important is your idea, and second is the execution of that idea. Third is the timing of your idea. Fourth, the funds. And fifth, which is how flexible you are, how much you can adapt with the changing times. Let me exemplify this. Now, during this pandemic, all of us were bored and depressed because the movie theaters were shut down and there were no sources of entertainment outside the walls of your houses. Now, here comes into light the Starlight Drive-In Cinema. It opened on the Canal Road in my hometown, Ludhiana itself. It is the first kind of drive-in cinema in the entire North India region. Now, what you have to do is park your cars, recline your seats, tune in your FM, and enjoy the movie experience, the safest movie experience outside your houses. And this is called Movie Under the Stars. Perfect idea, perfect execution, perfect timing. That's how you start an entrepreneurship in your country, and that is what the youth is doing. Very wonderful, ma'am. Your 5-point theory is actually pretty wonderful and enchanting as well, I must say that. Ma'am, Gurveen, do you want to say something on this? Do you want to add furthermore something to it? What is your take on it? First of all, I want to thank my dear co-panelist for beautifully exemplifying the 5 factors. But I have a doubt. You may have a beautiful idea of a Starlight Drive-In cinemas, but do you have the proper planning and execution to this brilliant idea of moving cinema without fuel and money?
Are you getting that for free? So this is the point which bothers me the most. And the worthy moderator, this is the factor where I can answer your question. The factor where we lack in India is funding. In India, we have less than 250 incubators, whereas in countries like USA and China, they have incubators in thousands of number, and that's why they are leading in startups. And if you're still underestimating this power of funding, then sorry, you're mistaken. You are living in a country where 80 million people are below poverty line. 300 million people are uneducated, and 700 million people have no access to internet. And that's why you are mistaken. You can't build a strong building on a weak foundation. And that's all my point, sir. Thank you so very much, ma'am. Talking about other countries as well, talking about the international perspectives as well, I think you have very well lucidly highlighted the key points which need to be fret upon. Right, Madam Garima, what is your take on it? Well, sir, priorly, when I come up in an argument, I come up with sheer facts. Countering my worthy panelist, what she said right now, I solidly believe that all you need is an idea and an internet connection, not the so-called capital, labor, and food cost concept. It's so simple as that. Just as we have YouTubers, we have 25 million Instagram business accounts. We have got young entrepreneurs which are actually switching globally thanks to digitalization. All this is possible because of schemes like the Atmanirbhar Bharat, Startup India, Skill India. What I more firmly believe is what we need is a right mindset, because with a right mindset, the battle is half won. My worthy panelist also highlighted about the illiterate population of India, but I can proudly say that past in the time of independence, when most of the population, the 90% population, yes, the 90% population was below the poverty line, we still came so far. And there's so much more to go, and we should be proud of it. I firmly believe that we may not succeed every time, we may even fail, but this tells us never to give up. Very wonderful, ma'am. Your points have been really very relevant, and the way that you tackled her point over there is indeed commendable. Thank you so very much. And sir, now coming up to you, what would you like to summarize over here? What would you like to say about this, taking from the viewpoints as she has talked about the 5-point theory that she has in her mind and the sanitary pads, entrepreneurs as well. Then we came up to her. She talked about international countries, international entrepreneurs, talking about incubators. That is why China is more successful. Talking about her, she has talked about capital. What is your view take on this particular topic? जी साहस शुक्रिया। मैं अपनी बात की शुरुआत मोहतरमा की बात से ही करना चाहूँगा। बड़ी ताज्जुब की बात है कि हम इसी ज़मीन पर बैठे ये कह रहे हैं कि हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम वर्चुअल स्पेस की ही बात कर लेते हैं। वर्चुअल स्पेस में सबसे ज़रूरी क्या होता है? हमारी जानकारियाँ, हमारी निजता और हमारा डेटा। मगर इस डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आप भूले नहीं होंगे 2019 में जब फेसबुक ने 27 करोड़ लोगों का डेटा लीक कर दिया था। पिछले साल में चलते हैं 2018 में कोबरा पोस्ट ने यह खुलासा किया और पेटीएम पर यह आरोप लगाया कि पीएमओ से सिर्फ एक कॉल आने पर पेटीएम ने अपने पूरे यूजर्स का डेटा उनको दे दिया था। इस सवाल का जवाब कौन देगा? दूसरी बात कि भारत सरकार जो फंडिंग स्कीम्स लेके आ रही है उनका क्या? पहले हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस टुडे की 2019 की रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि इस स्कीम का 75% हिस्सा भारत की अर्थव्यवस्था को हरकत में ला ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब से इस स्कीम का ऐलान हुआ है तब से लेकर आज तक क्रेडिट की मांग बढ़ ही नहीं रही है। और दूसरी स्कीम स्टार्टअप इंडिया, अगर हम
ऐसे ही एक और रिपोर्ट की बात करें जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, वो 33,000 स्टार्टअप्स के ऊपर बेस्ड है, उनका सर्वे है, और उसका नतीजा पता क्या है? उसका नतीजा है कि 80% लोगों को इस स्कीम का फायदा तक नहीं पहुंचा, 1 रुपया तक उनके हाथ में नहीं आया। इन स्कीम्स के बारे में कौन जवाब देगा? और 100 बात की एक बात, हम जहां जी रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वो श्रेणियों में बटा हुआ है, असमानताओं से भरा पड़ा है। ऐसे गैर बराबरी वाले समाज में अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचें तो ये देखना पड़ेगा कि एक एंटरप्रेन्योर किस मकसद से अपना काम कर रहा है। क्या वो जनसाधारण के कल्याण के लिए काम कर रहा है या सिर्फ अपने निजी मुनाफे के लिए? मुझे तो ये लगता है कि ज़्यादातर भारत के एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ निजी मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत 162 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा पड़ा हो और इनकी सफलता की कहानियां हवा में तैरती हों? ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत की जीडीपी सियाचिन के तापमान की तरह माइनस में जा रही हो और इनका नाम तमाम दुनिया के अमीरों में प्लस होते जा रहा हो? इनको देखकर तो मुझे बस राहत इंदौरी याद आते हैं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, ये फ़ायदे की तजारत है, चलो इश्क करें। शुक्रिया। Very well, sir. Very well. And I love your points over here. I love your point of view as well over here. But, I really tend to think one thing over here कि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो एक चीज़ भूल जाते हैं इस भारत देश में और वर्ल्ड ओवर भी, कि नौकरी और रोज़गार में फ़र्क होता है। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं नौकरी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रोज़गार उनके लिए क्या क्या कर सकता है। And we all can agree to disagree to one thing, that is that we all are hungry for money. We all want money. I think that's why we are living for this world. Right? Ma'am, do you want to add certain facts to it? Do you want to add anything more to it? Well, money is necessity. That is something we cannot survive without, and that is why we are pushing ourselves into this world of entrepreneurship. We need it. And ma'am, do you have any concluding remarks from your side? The only thing I want to say is to be good only to yourself is to be good for nothing. So if entrepreneurs are earning money, then they should invest it in other fields as well. Right. Right. Ma'am, do you have any concluding remarks from your side? I most certainly believe that we all are living a self-centered life. But on seeing it on a global panorama, one can see that if we are moving more firmly towards it, each small step can turn out together in unison and be a better one. Sir, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, मगर ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि एंटरप्रेन्योरशिप किस आर्थिक संरचना में हो रही है, किस आर्थिक ढांचे में हो रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जी सर, and thank you so very much. We have agreed to disagree on certain notions, and this indeed has been a very wonderful, laboring and fruitful conversation. I think that we cannot escape the advent of startups, as they are the fourth industrial revolution according to me, and we have to succeed in the coming of future as well. Thank you so very much. I, Sakshi Sharma, with my co-panelists, Mr. Sharandeep Singh, Mr. Dhirender Singh, Mr. Amit Sharma, and Ms. Ujjal Preet Kaur are here on today's panel discussion about international and new age Indian entrepreneurs. While I would like to start this talk by an instance from my own life, where my brother once said to me that, Sakshi, if today you are not going to build your dream, then tomorrow somebody else is going to hire you to build his or her own dream. Well, at that point, I realized that I don't want to be an employee doing 9-to-5 job living somebody else's dream. I want to pursue my own goal, my own dreams that I want to live.
So here I would like to have the opinion of Mr. Sharandeep Singh, who is also a young entrepreneur, that what was that point in your life that you realized that I want to become what I am today, and what is new age entrepreneur according to you? Thank you, Sakshi. Well, I have a very different opinion about the year 2020, where most of the people among us took a deep sigh that yes, finally 2020 is over. But I believe this was the year that helped us to realize our potential. It helped us to recognize who we are and what our strengths are. If I have to talk about myself, I am a plant enthusiast. And I love raising small succulents wherever I live, whether it's a hostel or my house, but I couldn't do it on a larger scale because of my bachelor's. But during the pandemic, alone and frustrated as we all were, I decided to opt it as a business. And today I'm running an Instagram handle with more than 4,000 followers on it. And I am earning handsome amount of money out of it. We always say there are 4 factors of production. One is land, labor, capital, and entrepreneurship itself. But I don't think in this journey from 0 to 4,000 followers, I have ever used land, I have ever used labor. All I needed was small investment, a creative mind, and a digital platform. This is what we call new age entrepreneurship. See, if you're making something out of a renewable resource, then it's new age entrepreneurship. If you are fulfilling a purpose or a cause in this world, then it is called new age entrepreneurship. If you are following your passion and making a difference, then it's called new age entrepreneurship. I totally agree with you, Mr. Sharan. Even in my opinion, an entrepreneur is someone who takes an initiative to solve the real life problem with his or her own innovation, creative ideas, and carries it forward. Today, entrepreneurship has gained a lot of respect with people from diverse backgrounds giving it a very big picture. Boosted by the success stories of some entrepreneurs, people have developed the gut to explore their ideas and venturing into the business avenues. Even the data of NASSCOM reflects that India is the 3rd largest base in the world with over 3,000 startups present in India. Moreover, India this year has improved his position in Global Innovation Index by 4 ranks and now stands at 48th rank among 131 countries, and I think that's a great achievement. Well, thank you so much, Mr. Amit, for your statistics. But we cannot deny the fact that agriculture is the backbone of our economy. So, I remember that once a man said to Sardar Vallabhbhai Patel that what is your culture? To which he replied, agriculture is my culture. About 70 to 80% of our population is dependent upon agriculture for its livelihood. Well, I would like to have opinion of Ujjal on how the farmer plays an important role in today's entrepreneurial world. Well, thank you, Sakshi. I think that agriculture is the most underrated aspect when we talk about entrepreneurship or startups. Even talking about India, we rank 11th in manufacturing, 12th in services sector, whereas we are the 3rd largest agricultural GDP in the world. As it is rightly said, that God looked down on his planned paradise and said, I need a caretaker. So God made a farmer. If we are privileged enough to have this discussion today, we should thank a farmer first. A farmer is the backbone of this country in terms of economic security, food security, environment sustainability, and leading a minimal lifestyle. And I think that these statements make it point clear that why agricultural entrepreneurship or progressive farming is needed the most. Well, Ujjal, can you cite us some of the examples to support your argument? For sure. As we all know that Punjab and Haryana are majorly agricultural dependent states. And being the breadbasket of country, majority of households are linked to agriculture. Let me cite you some examples.
a man from Sangarur named Avtar Singh has opened a venture named Bioscape Farms where he is doing commercial flower seed productions. He started just with 2 acres and today he covers more than 700 acres all over the India and is exporting seeds to countries like Holland and USA. He has annual turnover of more than 7 crores. Then talking about a farmer from Haryana named Udayveer Singh. He started organic honey production with flavors like saffron or neem and has annual sales of near around 80 lakhs. And I think that India can only be Atmanirbhar if its farmer is Atmanirbhar. बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं इतना कहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा अपना मानना ये है कि किसी भी ज़ख्म को बेहतर दिखाने से बेहतर है कि उसको बेहतर किया जाए। क्या बात है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन ने एक सर्वेक्षण किया दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 25 स्टार्टअप्स का, उसको उन्होंने अपनी मैगजीन में जगह दी, उसको छापा और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस 25 टॉप स्टार्टअप्स में से भारत के सिर्फ एक स्टार्टअप को जगह मिल पाई जिसे हम सब एशियन पेंट्स के नाम से जानते हैं, और सारे स्टार्टअप उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए। वहीं दूसरी ओर अगर मैं पूरी दुनिया में ऐसी 10 सिटीज़ की बात करूं जो स्टार्टअप्स और इनोवेशन के हवाले से जानी जाती हैं, उसमें भी आपको जानकर ये हैरानी होगी और हमको हताशा हाथ लगी हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान की एक भी सिटी दुनिया की टॉप 10 सिटीज़ में शामिल नहीं है स्टार्टअप्स के हवाले से और इनोवेशन के हवाले से, जिसका परिणाम हमको देखने को ये मिला कि वर्ष 2015 में हमारे भारत के स्टार्टअप्स के लिए जो फंडिंग आई थी वो $7.5 बिलियन की फंडिंग्स मिली थी, जो कि बहुत कम है। और उसका परिणाम 2015 से 2016-17 में ये देखने को मिला कि $7.5 बिलियन से भी घट के वो $3.5 बिलियन पर आ गई। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे स्टार्टअप्स की भारत में क्या हालत है। Well, Mr. Dhirendra, I want to ask you that why the Indians, they are so hesitant, right, to become entrepreneurs or to have their own startups? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ और एक मैं स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, उसके अनुसार और कुछ बिंदुओं पर मैंने बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, वो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहला जो मैंने जाना है, जो मैंने रिसर्च की है, वो ये कि हमारे भारत के स्टार्टअप्स में लैक ऑफ इनोवेशन है। हम कस्टमर की नीड को ही अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। दूसरा जो सबसे अहम कारण है हमारे इंडियन स्टार्टअप्स में, वो नेगेटिव कैश फ्लो, यानी कि हमारे डेटाबेस में, हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में पैसा दिखता तो है, कागजी तौर पे दिखता है, वो चेक के माध्यम से होता है, परंतु ऑन हैंड कैश नहीं होता है, जिसका परिणाम ये निकल के आया कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी की एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 90% स्टार्टअप जो है वो विद इन 5 ईयर बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसका परिणाम ये है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। हम स्टार्टअप को खड़ा तो कर देते हैं परंतु हमारे पास एक बड़ा विजन नहीं होता, उसको हम स्केलेबल नहीं कर पाते हैं, उस बड़े स्तर तक नहीं ले जा पाते हैं। Well, I beg your pardon. Here I would also like to add that because of the lack of vision or failure in the marketing and hiring the unskilled workers, and maybe because of not availability of enough capital resources, are also some of the reasons why the Indians are so reluctant to have their own startups, right? And rightly quoted by our own Prime Minister Narendra Modi, we may have millions of problems, but at the same time, we have billions of minds. Also, Sakshi, I think that vision of Atmanirbhar Bharat or Atmanirbhar Youth is not new. Gandhi ji laid its seed back then with Swadeshi movement, where he appealed the youth of India to produce, consume, demand and supply on their own, and we are carrying it forward today. Well, the vision that you are talking about, I want to know how the government has played its role in making the youth self-reliant. Well, Sakshi, I would like to answer your question. Definitely. Keeping in mind all these problems which my co-panelists has discussed, the government of India is trying to create such an ecosystem where the mentors will help the youth to start up, grow, as well as stabilize their business. The expeditions like Atmanirbhar Bharat, Startup India, Stand Up India
Make in India are the beginnings of India's self-realization of its potential. Moreover, according to Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, they are exploring their tie-ups with EDII and US-based company Vadhavan Foundations, which train the new, or we can say youth of startups within 500 colleges of India, and they have around 7,300 mentors and trainers. Apart from this, Sakshi, please just give me a few seconds. Definitely. Yeah. Apart from this, the government of India has reserved rupees 10,000 crores for supporting the youth, for supporting the young entrepreneurs, new startups. Okay, which will be distributed among the youth by an installment of rupees 2,500 crores per year, and that's a very good thing. Well, in this case, I would say hats off to our government. But I want to know how deep this vision has penetrated to the ground level. So, Mr. Sharandeep Singh, what is your take on this? So yes, Sakshi, I won't take names of Ola or Zomato or Swiggy. I want to take names of people from the very basics of our society. From people like Indu Kumari starting her very small venture of tea shop with just an investment of rupees 180, to people like Devulina selling chane ka achar, to people like Anita selling khatta meetha bangan. I mean, these are the people who have ignited the very first spark of the Atmanirbhar Bharat. Well, we cannot forget that India is a country where we can find maximum number of youth. But do you really think that youth in our country is capable enough to fulfill the mission of self-reliance? बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, मैं इतना कहूँगा कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ईमान निकलेगा। क्या बात है। दिलों में कुछ बड़ा करने का अरमान निकलेगा। क्या बात है। और मेरी पीढ़ी के ये युवा भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। क्या बात है। इसका मतलब ये है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर साध भी है, साधन भी हैं स्टार्टअप्स को खड़ा करने के लिए। आज हमारे युवाओं को ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ साधना की। अगर वो हो जाता है सकारात्मक तरीके से तो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को ज़रूर छुएंगे। जी बिल्कुल मिस्टर धीरेंद्र जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी that the time is ticking and this discussion can go on and on. But not to forget that there are 5 P's to become a successful entrepreneur. The first, passion, the most important one. Second, patience. Third, persistence. Fourth, people. And last, profits. Of course, why we are in this business, right? And it is high time that we realize that if not now, then when? And if not us, then who? Thank you. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं मुस्कान कटोच आप सबका स्वागत करती हूं हमारी आज की इस पैनल डिस्कशन में, जहां हम सब एकत्रित हुए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे देश की नींव से जुड़ा हो, जो हमारे सच्चे विकास से जुड़ा हो, जो हम सब युवाओं से जुड़ा हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की। आज इस सदन में रखे हुए विषय कि अंतर्राष्ट्रीय और नवयुग के भारतीय उद्यमी, उस विषय पर आज हम कई युवाओं से बातचीत करेंगे। हम उनकी राय लेंगे कि उनका क्या मानना है। मैं सबसे पहले हमारे आज की पहली पैनलिस्ट जैस्मीन जी का स्वागत करती हूं, हमारी दूसरी पैनलिस्ट ज्योति जी का स्वागत करना चाहूँगी, और हमारी तीसरी पैनलिस्ट जसलीन, और हमारे चौथे और आज के आखिरी पैनलिस्ट सौरभ जी का स्वागत करना चाहूँगी। आज हम इन चारों युवाओं से बात करेंगे कि इनकी क्या राय है इस विषय पर। वो कहते हैं ना कि आज किसी भी देश के सच्चे विकास के लिए उस देश के पास उसके युवाओं का साथ होना बेहद ज़रूरी है। और मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि आज भारत देश में ज़्यादा मात्रा में युवा पाए जाते हैं। आज वर्तमान की बात करें तो भारत देश का ऐसा कोई भी क्षेत्र अनछुआ नहीं रहा हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के नए स्टार्टअप्स, उनकी नई नीतियों से। आज हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र हो या हम आम आदमियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, आज हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स ने हमारी ज़िंदगी को भी मानो आसान बना दिया हो। इसी से जुड़ा मेरा आज का पहला सवाल है जो सीधा जैस्मीन जी के पास जा रहा है। तो जैस्मीन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या एक युवा होने के नाते आपको भी
भी लगता है कि आज हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है? जैस्मीन जी। Thank you, Muskan. We can't not talk about apps when discussing about the new age entrepreneurs. New age relates to diverse cultures, and it's the transition from medieval times to the so-called modern era, which encompasses various work environments. Entrepreneurship has been the need of the hour in every era. With the development in the field of science and technology, especially with inventions like television and the World Wide Web, facilitated in the convention of ideas, which resulted in cluster growth of entrepreneurs with a hunger for business development. Entrepreneurs today are opportunistic. They sense the need of the people and indulge in intense research and bring us apps that cater to different scenarios. Let's take an example of the power sector. The power sector today is bearing the brunt of people because of the huge gap between demand and supply. Here's when entrepreneurs come into action. They utilized wind and the sun to manufacture power. They use these two non-exhaustible resources to generate power at cheaper rates. It's the need that generates an idea. Anita Kulkarni, the mastermind behind Transplant Care, an app that improves transplant care, was developed because she was having a hard time dealing with hospital visits, doctors, and whatnot, while her husband was recovering from a transplant surgery. Who knew I needed an app that would buzz me in every time I had to drink a glass of water? We have apps for everything. Craving for chole bhature or pav bhaji? Order from Zomato. Want to visit your friends or family? Book a cab on Ola. Want to watch a movie? Sure, book a ticket on Book My Show. Craving a delicious cup of tea? Order it from Chai Point. And it doesn't just stop here. We have Byju's for education, Flipkart for shopping, 1mg Pharmacy for medicines, Make My Trip for vacations. You name it, we have it. Indian entrepreneurs have emerged as global leaders and are proving to be trendsetters in their field of expertise. Let's talk about Birlas and Tatas. They were the beacon of hope for young entrepreneurs. These brilliant minds deciphered the word impossible. They read impossible as I am possible. If we have the courage, if we have the spark to decipher the word, the sky won't be the limit anymore. We will strive to achieve success. All of us here have the potential. It's just the courage and the risk-taking ability we need. Me, you, all of us. We can be entrepreneurs, we can create history. Thank you. बहुत खूब जैस्मीन जी, आपने बहुत ही उम्दा तरीके से अपने विचारों को प्रकट किया। अब मैं जाना चाहूँगी हमारे दूसरी पैनलिस्ट के पास, ज्योति जी। जैसा कि जैस्मीन जी का कहना है कि आज हमारे जो भारतीय एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बदौलत आज महिला सशक्तिकरण को बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है, तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? Thank you, Muskan. I completely agree. I am reminded of a young African girl who was molested and raped several times by her own relatives. But now she's ruling the world. Yes, ladies and gentlemen, I'm talking about Oprah Winfrey, an American talk show host, writer, author, and philanthropist. I am reminded of first female Indian entrepreneur, Kalpana Saroj, who is on whose name the famous film, Oscar-winning film, Slumdog, has been renamed. I am reminded of Madam C.B. Walker, who is India's first female millionaire. I am reminded of all those Indra Nooyi and all these people who are and will be forever the living examples of super successful women. Now I'll quote some of the government initiatives and schemes which have been created to boost entrepreneurship businesses in India. Make Up India, Startup India, and these all schemes have been initiated so that our entrepreneurs can boost themselves. Also, it's not the government initiatives but also foreign companies which have come across to stand. How these entrepreneurs have come across and stood against all the barriers. And we are all aware of the examples like McDonald's came to India, they introduced Mac Aloo Tikki in the menu, and we know that this is the love for them, of how they love potatoes, and this is all led to the competition and successful competition. Thank you.
बहुत खूब ज्योति जी, आपके भी विचारों को आपने बहुत अच्छे से प्रकट किया। अब मैं जाना चाहूँगी हमारी तीसरी पैनलिस्ट यानी कि जसलीन जी के पास। जसलीन जी, जैसा कि ज्योति और जैस्मीन ने बताया कि आज भारत सरकार की नीतियों द्वारा हमारे जो भारतीय एंटरप्रेन्योर्स हैं वो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी सफल साबित हो रहे हैं, तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हम जानना चाहेंगे। Thank you, Muskan. I'll say there are always a loophole in system. It's been 4 years of Startup of India, but still only 8 out of 50,000 of startup has belonged to the unicorn. I believe that all the Indian government schemes has failed just because lack of intuition and lack of experience, lack of subsidies that are provided by the local government to the young entrepreneurs that are entering in the global market has not been succeeded, because our government is supporting to the corporates who are the wealthy mouths who just needs money and get rich, and poor are being more poor and more poor. I'll say the most prominent scheme, Make in India, that has been initiated to grow for the growth of the exports has also been the failure of our very own government, just because due to the lack of the policy, lack of implementation, and lack of regulation. And when we talk about startups, it has no implementation to our young entrepreneurs, just because of red tape, corruption, and whatnot. Every bureaucrat's inefficiency. And I'll further add about the barriers that our young entrepreneurs are facing in the legal and political environment, and also the institutional funds, labor, taxes. Nothing is much more efficient. So many such questions are still unanswered, and that's it. बहुत बहुत शुक्रिया जसलीन जी। अब मैं जाना चाहूँगी हमारे चौथे और आज के आखिरी पैनलिस्ट के पास, जिनका नाम सौरभ है। सौरभ, जिस तरह से जसलीन ने अपने भावों को रखा, अपने विचारों को रखा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस विषय पर आपके क्या विचार हैं। Thank you, Muskan, first of all. In spite of all the successful entrepreneurial stories that my fellow panelists were putting across forward, I would like to take a step ahead and mention all the pitfalls and barriers associated with international and new age Indian entrepreneurs. Starting from the very basic, when you start young as an entrepreneur, what are the difficulties that can come your way? A, you don't have any experience in running a business. You simply don't know anything when started young, and you cannot compare your school life problems and solutions to real life world problems and solutions. B, you don't have any credit history. You don't have any banks to finance you. You don't have any banks to support you monetarily. You don't have any money put aside. You don't have any asset or any prized possession, and you can't even keep your house as a collateral because you simply don't own one. Also, when you start young, it's hard to find trust of customers, and because of which it is hard to find big contracts. And you can say because of which it is hard to get successful. Also, when you start young, you have very little time to live your life. You have time to live your life eventually, but till then it's too late for you. Now, going by the statistics, as my fellow panelists were also going, according to the findings of the survey by Institute of Business Value and Oxford Economics, about 90% of the startups, 90% of the startups, my dear friends, fail within the first 5 years of their establishment. I like to tell you that India has about nearly 50,000 startups, out of which, as my fellow panelists also mentioned, only eight of them could make it to the unicorn and $1 billion valuation. My fellow panelists also mentioned how McDonald's became a success and everything, but I would like to name few of the internationally famous companies that failed miserably in Indian market. We have examples of eBay. We have examples of Fiat, General Motors, who launched the Chevrolet car. We have examples of Sahara. We have examples of Kingfisher. Elaborating one of them, Dunkin' Donuts, another famous US-based company,
famous in India for its sugar-spiked menu and breakfast donuts, could not adapt to Indian market. Since starting in 2012, according to the statistics, it had to close 60% of its stores by the end of 2018. We can talk about things, but practically it's not easy to implement. Lack of access to funding, lack of knowledge of the market, lack of knowledge of foreign market, language barriers, semantic barriers, and there are so many other barriers. In the end, I can conclude by saying that definitely I'm not against the idea of entrepreneurship, because that's how an economy works. But I'm definitely against how things are taken for granted on behalf of government, on behalf of us as people, on behalf of us as youth, or on behalf of entrepreneurs themselves. Thank you, that's all. बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपने भी अपने विचारों को बहुत ही बखूबी रखा। आज हमने सुना चारों युवाओं को, कुछ युवाओं का मानना है कि आज भारतीय युवा जो भारत के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत देश का झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ युवाओं का इससे विपरीत मानना है। और आज अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज 90% भारतीय स्टार्टअप 5 सालों में शुरू होते ही बंद हो जाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो 80,000 भारतीय स्टार्टअप्स में से केवल 6,400 भारतीय स्टार्टअप ही फंडिंग इकट्ठी कर पा रहे हैं। इसका मतलब आज केवल 8% भारतीय स्टार्टअप ऐसे हैं जो फंडिंग इकट्ठी कर पाते हैं। इसका मतलब आज हमारी सरकार को ये समझना होगा कि जो कागजी तौर पे नीतियां बनाई जा रही हैं उन्हें कागज से ज़मीनी स्तर पर भी लाना होगा और उन्हें अमल करवाना होगा, ताकि हमारे युवा ज़्यादा मात्रा में स्टार्टअप शुरू करें और ज़्यादा मात्रा में हमारे आज भारतीय स्टार्टअप सफल हों, ना कि ज़्यादा मात्रा में शुरू होते ही बंद हो जाएं। क्योंकि आज हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स ही हैं, भारतीय स्टार्टअप ही हैं जो एक दिन हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत कहला सकते हैं। और वो कहते भी तो हैं कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है, अभी तो सारा आसमां बाकी है। विद दिस हम आज की इस पैनल डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। मैं सभी चारों पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने आज हमें और हमारी इस पैनल डिस्कशन को समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान। पोत अगणित इन तरंगों ने डुबोए मानता में, पोत अगणित इन तरंगों ने डुबोए मानता में, पार भी पहुंचे बहुत से यह बात जानता मैं, किंतु होता सत्य यह भी सभी जलयान डूबे, पार जाने की प्रतिज्ञा आज बर्फ स्थानता में डूबता मैं किंतु उभरता सदा व्यक्तित्व मेरा, हो युवक डूबे भले ही है कभी डूबा न यौवन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। युवाओं की जोखिम मोल लेने की इस उत्कंठा, इस आत्मविश्वास को सलाम करते हुए मैं अनुप्रिया आज के इस डिस्कशन में इस विषय पे बातचीत करना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय उद्यमियों के बारे में। उद्यम का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा क्षमता की कि हम अपने नुकसान एवं फायदे दोनों को झेलने की क्षमता रख सकें। पर कहीं ना कहीं ये जो चीज है आज हम में कहीं ना कहीं कम होती हुई जरूर जा रही है। आज हम लोगों का जो रुझान है वो सरकारी नौकरियों की तरफ ज्यादा लगता है। हम लोग दुखी हैं इस बात से कि क्यों सरकार रिजर्वेशन नहीं हटाती है कि मैं जनरल हूं, मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं। हम लोग दुखी हैं इस बात से कि हमारे भारत में रोजगार के अवसर कम हैं। हम लोग दुखी हैं इस बात से कि हमारे भारत में जिस तरीके की पढ़ाई की जा रही है, सुंदर पिचाई जी ने भी कहा था कि उस तरीके को थोड़ा सा हमें बदलने की जरूरत है। हम सभी दुखी हैं इन सब बातों से, तो क्यों ना इन सब बातों से दुखी होने के बदले कुछ ऐसा किया जाए कि हम सब कुछ परिवर्तित कर सकें। इलॉन मस्क को लगा था कि हम अपने प्लैनेट अर्थ पे ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने सोचा चलो मंगल ग्रह चलते हैं। लोगों को लगा कि उनका जो विचार है वो अच्छा नहीं है, ये पागल है, परंतु उन्होंने कंपनी स्टार्ट की स्पेसएक्स। आज आप सभी टेस्ला कार का नाम जानते हैं और आप सभी जानते होंगे कि टेस्ला से जो प्रॉफिट मिलता है वो बहुत ज्यादा है। किंतु ये बात बता दूं, आज उनकी जो कंपनी स्पेसएक्स है, जो कि शुरू ही इसी बात के लिए की गई थी कि हम मार्स पे जाएंगे,
वो कंपनी आज टेस्ला से ज़्यादा कमा कर उन्हें देती है। तो ऐसे ही विचारधाराओं की हमें ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के युवा ऐसा नहीं कर रहे, काफ़ी उस क्षेत्र की तरफ अग्रसर भी हो रहे हैं। जैसे हमारे दीपेंद्र गोयल जी की बात चल रही थी, उन्होंने जोमैटो की शुरुआत की, श्री हर्षा मछीती जी हैं, फिर हमारे पास पेटीएम है, हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे पास अर्बन कंपनी है जो बहल जी ने शुरू किया था। हमें इन सब युवाओं को, जो कि बेसिकली हमारे सीनियर्स हैं, हमें उनके पथ पे चलना चाहिए और हमें सोचना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एग्जैक्टली उनकी बात को कोट करना चाहूँगी, Youth should be converted from job seekers to job givers. हमारे भारत के युवाओं को जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला, व्यवसाय देने वाला बनने की जरूरत है। ये जो बात हम लोग कर रहे हैं वो मैं अपने वक्तव्य में कह चुका कि हमें अपने साथ साथ औरों को भी प्रेरित करना है कि हम उन्हें भी अपने साथ लेकर के चलें। प्रतिस्पर्धा का युग जरूर है, लेकिन इस बात को मैं एक बहुत छोटे से उदाहरण से जोड़ूं। मैं सफल लोगों की बात नहीं करूंगा, उसका कारण आज जो यहाँ सफल होंगे ना, उन सबके नाम कल अखबार में आ जाएंगे, लेकिन जो असफल होंगे इसका अर्थात ये नहीं कि उनके पास कोई आइडिया नहीं था या उनके पास कोई ऐसा विचार नहीं था कि वो दे सके। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो असफल जरूर होते हैं, लेकिन उनकी असफलता के पीछे कोई ना कोई सीख होती है। लेकिन एक कोरोना काल हमने जो भी देखा, बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई, बहुत से लोगों को घर जाना पड़ा, किन्हीं को निकाल दिया गया तो किन्हीं की ऐसी मजबूरी आ गई कि उन्हें छोड़ना पड़ा। मैं मुंबई माया नगरी की बात करता हूँ, वहां का वड़ा पाव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, सब लोग उसके लिए एक तरीके से मैं कहना चाहूँ कि दीवानापन है। हम लोग भी वहां जाते हैं तो मुंबई का वड़ा पाव खाना। एक व्यक्ति, उसकी नौकरी छूट जाती है, जब नौकरी छूटती है वो घर आ जाता है, मुंबई का रहने वाला होता है, मानव नाम है उसका, लेकिन वो सोचता है कि मैं क्या करूं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि लॉकडाउन खुल गया, लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं, लोग बाहर का खाना नहीं खा रहे, लोग बाहर किसी दुकान तक नहीं पहुंच रहे। उसने एक काम किया, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहां पर गाड़ियां रुकती है, उसने एक सिटी वड़ा पाव नाम से वड़ा पाव का पैकेट तैयार किया और वो सिग्नल पर जाकर के उन गाड़ियों तक पहुंचाने लगा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उसने इस विगत 6-7 महीने के दौरान उसके 3 साल की कमाई से ज्यादा का अर्न कर लिया। तो वो उसका एक इनोवेशन था, उसने सोचा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, हार नहीं मानी। निश्चित तौर से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियां मुझे याद आती है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती 100 बार गिरती, लेकिन फिर भी वो चढ़ना नहीं छोड़ती। एक कलमकार ने लिखा कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें और स्वार्थ साधना की आंधी में अरे वसुधा का कल्याण न भूलें और सील विनय आदर्श शिष्टता तार बिना झंकार रही और शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। सिर्फ शिक्षित होना ही आवश्यक है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम उस कृषि में आधुनिक पद्धति को अपनाते हुए पशुपालन और खेती में भी अगर युवा आगे आ जाएं तो निश्चित तौर से बहुत 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 उम्दा उदाहरण बन के आ सकते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वहां के एक उद्यमी, बहुत बड़े उद्यमी हैं, आप कहेंगे तो मैं विद प्रूफ आपको दिखा सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाया और अभी 2-3 दिन पहले अखबार में उनकी एक मोटिवेशनल स्टोरी छपी जिसमें एक पपीते के पेड़ से आप क्या उम्मीद करते हैं कितने पपीते उन्होंने लिए होंगे? एक पपीते के पेड़ से 150 क्विंटल पपीता उन्होंने लिया। आप और हम उम्मीद नहीं कर सकते कि यह सच भी होगा, लेकिन उन्होंने शिक्षा के साथ साथ उस खेती और पारंपरिक चीज में भी अपना ध्यान दिया। हम लोग नौकरी की तरफ जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ रही है। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं कि आज अगर आईपीएल का मैच हमें खेलना है तो कोई गारंटी नहीं कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन अगर एक किसी देश के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टेस्ट सीरीज हो रही है, निश्चित तौर से हमारे जीतने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सामने एक ही टीम है, वही 11 खिलाड़ी हैं, उनकी मानसिकता समझनी है, उनका ही खेल समझना है और उनके विरुद्ध अपनी चाल जमानी है और हमें जीत जाना है। एक तरफ लाखों की भीड़, एक तरफ चंद लोग। अब हमें अपना रास्ता चुनना है कि हमें किस ओर जाना है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास भी मिल जाएंगे।
बड़े बड़े उद्यमियों की बात करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान में जन्मा व्यक्ति विदेश में जाकर भी अपना नाम करता है। लेकिन उतना ही दुख होता है कि हिंदुस्तान से शिक्षा प्राप्त करता है, IIT IIM में पढ़ता है और अपनी शिक्षा का उपयोग वो विदेश में जाकर के करता है और विदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। अरे हम तो उस महाराणा प्रताप की संतान है जिसने राजमहल त्याग दिए और अपने आप को इस देश के लिए समर्पित किया। तो आप भी अपने अंदर राष्ट्र को समाइए। मैं गर्व से कह सकता हूं जब भावना राष्ट्र के लिए आ जाएगी तो हमारा भला भी होगा और राष्ट्र का भी होगा, लेकिन सिर्फ एक तरीके से, आत्मनिर्भर। इसका अर्थात ये नहीं, मैं फिर से कह दूं, सरकार भी ये नहीं कह रही कि स्वदेशी अपनाओ तो विदेशियों का बहिष्कार करो। उनसे सीख लीजिए, उनकी टेक्नोलॉजी अपनाइए, उनका ज्ञान लीजिए, उनका अनुभव लीजिए और उसमें कुछ अपना मिलाइए। जब कुछ अपना पास्ता और मंचूरियन और ये सब चाइना की चीजें हम कहते हैं, लेकिन वहां तो खाते ही नहीं। हमने इसे अपने आइडिया से बनाना चालू कर दिया और हर घर में अलग टेस्ट से बनता है। और वह भी अगर कोई धंधा या उद्योग उसका भी करना चाहे तो वह भी, लेकिन हमारी एक सोच ये हो गई है कि छोटा कार्य, मैं MA हूं, मैं BTech हूं, मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूं। जब तक कि मैं अंदर से नहीं निकलेगा और राष्ट्र अंदर नहीं आएगा, न तो हम कुछ कर पाएंगे न राष्ट्र को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं अपनी बात रखना चाहूंगी इस छोटी सी लाइन से कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस चीज पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। जैसे कि आपको पता है आज हमारे देश में हर एक व्यक्ति, जब भी किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप ये क्या करना चाहते हैं, आप बड़े पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हो, तो उनके पास दो ही आंसर होते हैं। एक तो वो ये बोलेगा कि मैं ऑनर होना चाहता हूँ किसी कंपनी का, जिसकी सोच बड़ी होगी वो ये जवाब देगा। लेकिन दूसरा जो आमतौर पर कहा जाता है कि मैं सरकारी नौकरियों में जाना चाहता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि यदि हम सरकारी नौकर बनेंगे तो हमारे देश में हमारी वैल्यू ज्यादा होगी, समाज वाले वैल्यू ज्यादा करेंगे और हमारे परिवार वाले ये कहेंगे कि अगर तू सरकारी नौकरी में होगा तो तेरी शादी अच्छे घराने में हो जाएगी। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति है, या कुरीति बोलो या फिर अच्छी बात बोलो, क्योंकि ये कहा जाता है एक सरकारी नौकर अगर तुम हो तो वो आगे बढ़ेगा, और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसका क्या। आज बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसे कई व्यक्ति बैठे हैं जो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो खुद आगे बढ़ते हैं। और मैं भी उसी सोच को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि मैंने अपना ये करियर स्टार्ट किया था, जब मैं स्पीच देने लगी थी तब मुझे नहीं पता था कि इसका आगे जाकर मैं कहां तक बढ़ूंगी। बस मुझे ये ध्यान था कि मैं बढ़ती जाऊंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मुझे बढ़ना है। बस बात सिर्फ इतनी है कि अपनी सोच अगर थोड़ी सी अलग रखें, थोड़ी सी विभिन्नता अपने समाज से रखें या फिर अच्छी विभिन्नता रखें, तो हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा जो बात यहाँ पर की जा रही है उद्योग की, इनकी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश में मुकेश अंबानी है। उन्होंने जब स्टार्टिंग की थी उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। उन्होंने बस स्टार्टिंग की। तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपके फर्स्ट स्टेप से। अगर आप पहला कदम बढ़ा लेते हो तो आगे बढ़ जाते हो, और जब पहला कदम आपका बढ़ता है तो आगे जाकर आपको एक सोच मिलती है और इसके अलावा सॉल्यूशन भी मिलता है कि आखिर आप क्या करना चाहते हो। कुछ जोड़ना चाहूंगी मैं आपकी बात में और आपकी बात में। तो आपने सबसे पहले शुरुआत की कि हम जानते सिर्फ उन्हीं लोगों को हैं जो सफल हो जाते हैं। अखबारों में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम आता है जो सफल हो जाते हैं। परंतु यदि हम उद्यमियों की बात करें, केवल इसे भारत तक ना सीमित रखते हुए हर उद्यमी की बात करें, तो हमें ये बात जाननी चाहिए कि उद्यम के क्षेत्र में एक मानसिकता होती है, जिसे समझाने के लिए मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो किंतु कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। हमें हार जीत की परवाह किए बिना केवल विश्वास होना चाहिए। तो अपने आप पे मेरे पास कुछ नहीं है, किंतु मेरे पास एक विश्वास है। जब मुकेश अंबानी जी ने अपना कारोबार शुरू किया था तो उनकी मदद की थी धीरूभाई अंबानी जी ने, जो कि उनके पिता थे। यदि हम एक बहुत उद्यम के क्षेत्र में बात करें, नए इनोवेशन जिसे कहते हैं उसके क्षेत्र में बात करें, तो धीरूभाई अंबानी जी एक अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। मुकेश अंबानी जी की कैपेबिलिटीज पे डाउट नहीं है। तो मैं
अपना उदाहरण केवल इतना देना चाहती हूँ कि हम इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। हमारे पास एक ही चीज़ होनी चाहिए, आत्मविश्वास, काम करने की शक्ति, अड़िग रहने की शक्ति। हार मानूंगी ही नहीं मैं। इलॉन मस्क की मैं अगर बात करूं, उन्होंने पेपाल स्टार्ट किया था। पेपाल जब उन्होंने शुरू किया बहुत पैसे मिले। पैसे मिलने के बाद उन्होंने सबने उन पैसों का अलग अलग जगह पे प्रयोग किया। उन्होंने सारे पैसे अपने सपने को पूरा करने में डाला। केवल एलॉन मस्क ही क्यों, जेफ बेजोस की बात करें, आज अमेज़न A to Z स्टोर से बदल के आज अमेज़न बन चुका है और जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो उद्यमियों ने हमेशा इस बात को जाना है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप ही नहीं प्रवेश करता। कार्यों की सिद्धि के लिए आवश्यक है प्रयास। इन्हीं प्रयत्नों से, यत्नों से, जतनों से एक ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति जो आसपास अपनी हो रही दिक्कतों को ध्यान देके, अगर उसे लगता है कि मुझे ये दिक्कत महसूस हो रही है और वो चाहे कि ये दिक्कत मैं नहीं चाहूंगा कि बाकी लोगों को महसूस हो, तो उस क्षेत्र में कुछ काम करे। मैंने स्वयं ने काफ़ी ऐसी चीज़ें सोची हैं। तो मैंने अपने ऐप का नाम भी सोचा है, द कृषि। मैं भी उद्यम के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हूँ। जल्द ही आप इसको प्ले स्टोर पे पाएंगे, किंतु तब तक मैं थोड़ा उसके सबसे ज़रूरी है ज्ञान। मैं एक इंजीनियरिंग की छात्रा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐप बनाने के लिए मुझे केवल तकनीक की ही ज्ञान हो, ये ज़रूरी नहीं है। यदि केवल तकनीक के ज्ञान के साथ मैं उद्यम के क्षेत्र में विस्तार करने की कोशिश करूं, नहीं हो सकता। उद्यम के क्षेत्र में मुझे ज़रूरत है एक बिजनेस एप्टीट्यूड की भी। मुझे एक ऐसी मानसिकता की ज़रूरत है जिसमें मैं ये देख सकूं कि अगर मैं आगे चलूंगी तो मैं इस तरीके से आगे बढ़ सकती हूँ, इन जगहों पे मैं पीछे हट सकती हूँ। मैं अगर चाहूँ तो सबसे पहले मुझे लोगों की मदद लेनी चाहिए और हमें लोगों को जो रोज़गार उत्पन्न करने की बात है, सबसे बेहतरीन जो समय होता है किसी नए उद्यम को शुरू करने वाला, वो होता है जब आप युवा हैं, जब आप कॉलेज डेज में हैं। उस समय पे आपके अध्यापक, आपके दोस्त सब आपकी मदद कर सकते हैं। उससे अच्छा समय एक उद्यम के विस्तार के लिए कुछ नहीं होता। यदि हम अपनी अच्छी मानसिकता के साथ थैंक यू। आपकी बात को मैं यहाँ से जहाँ आपने छोड़ा वहां से उठाता हूँ। निदा फाजली लिखते हैं कि नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, अरे कैसे दीमक खा गई ये मेरा हिंदुस्तान। इसका अर्थ ये है कि आज का युवा, आप में से 70% युवाओं के पूर्वजों के पास जमीन होगी। 100 एकड़ जमीन अगर मुझे या आपको मिलती है तो हमारा पहला दिमाग ये आता है मैं वहां प्लॉटिंग कर दूं, उनको बेच दूं और शहर में शिफ्ट हो जाऊं। क्या किसी ने ये सोचा कि मैं पे वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाऊं, मैं राजस्थान के राज्य पशु ऊंट को वहां पर पाल करके सरकारी योजनाओं का लाभ उठाऊं? तो निश्चित तौर से सरकारी योजनाओं में कहीं कमी थी तो वो स्टार्टअप इंडिया आया है। स्वप्रमाणिकता, अनुभव में छूट, कर में छूट, ये सब इसलिए दिया गया है कि युवा आगे आ सके। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि युवा आगे आए। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि तकनीक होनी चाहिए, तकनीक हो या मत ना हो, प्रयास करना चाहिए। उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जब हम प्रयास करते हैं तो जरूर हमें विफलता मिलती है, जरूर हम हारते हैं। ये बात सच है कि हमें हार जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि हार से जो सीख मिलती है उससे बड़ी जीत और कोई हो ही नहीं सकती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। युवाओं के लिए मैं सिर्फ इतने बात से अंत करना चाहूंगी। युवाओं ने सदा इस चीज को समझी है, अगर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को तो जाओ, जाके जरा ऊंचा करो इस आसमान को। यदि इसी मानसिकता के साथ हम सभी चलेंगे तो हमारा देश ही नहीं, विश्व भी प्रगति की ओर अग्रसर करता रहेगा। धन्यवाद। दिल्ली जिसका विषय है अंतरराष्ट्रीय और आधुनिक भारतीय व्यवसाय पर पैनल चर्चा। आपसे एक विचार साझा करूं। आज मेरे लिए हर्षित होने और प्रफुल्लित होने की बात यह है कि अपने शैक्षणिक काल में मैंने जितनी भी पैनल चर्चाओं का अनुभव तथा रसपालन किया है, उसमें से यह पैनल चर्चा सबसे युवा पैनल चर्चा है।
में पहले से ही अवगत है। इसीलिए समय को व्यर्थ न करते हुए मैं प्रत्यक्ष रूप से इस पैनल चर्चा का आरंभ करना चाहती हूँ। मेरे विचार से उद्यमी बनना और मजबूती के साथ एक नए युग की शुरुआत करने में अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इसीलिए मैं चाहूंगी कि मेरे इस विचार पर आप में से कोई भी अपनी राय को साझा करे। आप में से जो भी अपनी राय को साझा करना चाहता है वह स्वतंत्र रूप से बोल सकता है। मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय को साझा करें। मुझे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। उद्यमी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा योगदान निभाती है। इसके कुछ सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलू हैं। मैं आपका ध्यान पहले नकारात्मक पहलुओं की ओर ले जाना चाहूंगी। इसमें कुछ ही लोगों को उद्यमी बनने का अवसर प्राप्त होता है, इसमें कर अत्यधिक होता है। अब मैं आपका ध्यान सकारात्मक पहलुओं की ओर ले जाना चाहूंगी। उद्यमी क्षेत्र अर्थव्यवस्था को तकनीकी सेवा प्रदान करता है, नौकरी के अवसर प्रदान करता है, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी कम होती है और हमारे देश का विकास भी तेजी से होता है। हमारे देश में गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। आपको ज्ञात होगा 1996 में हमारे देश की जीडीपी ऐतिहासिक रूप से गिरी थी और वर्तमान में हमारे देश की जीडीपी 23.9% तक गिरी है, जो कि गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। परंतु मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी जीडीपी विश्व में 5वें स्थान पर आती है और 2.94 लाख करोड़ डॉलर हमारे देश की जीडीपी है। यही राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को प्रस्तुत करते हैं। हस्तक्षेप करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या आप मुझे कुछ ऐसे उद्यमियों के उदाहरण दे सकती हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था की नींव पर उद्यम के बल से प्रस्तुत किया है? हाँ, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बहुत खुशी होगी। हम सभी जानते हैं हमारा देश उद्यमी क्षेत्र में कुछ कम पीछे नहीं है। संजय कुमार, श्रवण कुमार, ये दोनों ही गो डायमेंशन नाम की कंपनी के ओनर हैं जिन्होंने ये कंपनी खोली, और रितेश अग्रवाल जिन्होंने ओयो रूम सामग्री पोर्टल खोला। आज ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत सफल हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के उदाहरण जो आज हमारे सामने हैं, जो आज अपनी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा सफल हैं। अब मैं अपने साथियों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। राजनीति, यदि मैं इस शब्द का उच्चारण करूँ तो हम सबके मस्तिष्क में केवल एक ही शब्द आता है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अंतर्राष्ट्रीय एवं आधुनिक भारतीय व्यवसायों के क्षेत्र में राजनीति क्या योगदान निभाती है? क्या इसमें भी भ्रष्टाचार है या इसमें स्वस्थ राजनीति का उपयोग किया जाता है? मैं चाहूंगी आप इस प्रश्न का उत्तर दें। राजनीति के बारे में आप जो विचार रखते हैं वह उससे बिल्कुल ही अलग है। राजनीति सामाजिकता, नैतिकता, दार्शनिकता, विज्ञान सभी के बारे में अवगत कराती है। हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आज की राजनीति स्वस्थ राजनीति नहीं है, परंतु यदि भारतीय नवीन पीढ़ी अंतर्राष्ट्रीय रूप तथा राष्ट्रीय रूप से उद्यमी हो जाए तो राजनीति में मानव चमत्कार ही हो जाएगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए गए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की गतिविधि के बारे में विद्यार्थी जैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में जो आने वाले नेता हैं वे काफी रचनात्मक सोच के होंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि राजनीति ही है जो आज नए युग की शुरुआत को मजबूत कर सकती है। यहाँ मैं कुछ पंक्ति बोलना चाहूँगी कि माथे पर यांचल बहुत छूटा परंतु उसका पत्र बना लेती तो अच्छा था। यदि हम इसके नकारात्मक प्रभावों को छोड़कर सकारात्मक पहलुओं पर मेहनत करें तो समाज में नए युग की शुरुआत 100% होगी। मेरे लिए तो जिज्ञासा और ज्ञान से भरा क्षेत्र विज्ञान है, पर मैंने तो सुना है ये विज्ञान और वरदान और अभिशाप दोनों हैं। इसमें किसकी क्या राय है? इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता महसूस होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विज्ञान भौतिक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। विज्ञान को
प्राचीन काल में भौतिक विज्ञान के नाम से भी जाना जाता था। विज्ञान एवं तकनीकों ने आज की युवा पीढ़ी को इतना आकर्षित किया है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी कदम से कदम मिलाकर विकास की ओर आगे बढ़ रही है। हमारी आज की युवा पीढ़ी उत्साह एवं उमंग के साथ विकास के पथ पर चल रही है और उनकी इसी उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए सरकार ने भी उनका भरपूर योगदान दिया है। उदाहरण के तौर पर मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि पहले हम कच्चा माल सस्ते दामों पे दूसरे देश के लोगों को बेच दिया करते थे और उनसे बनी वस्तुओं को महंगे दामों पर खरीदते थे, परंतु आज की युवा पीढ़ी ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा इस्तेमाल और प्रदर्शन किया है कि हम उनके कच्चे माल द्वारा वस्तुओं का निर्माण स्वयं अपने देश में करते हैं। और ये विज्ञान और तकनीकी हमारे लिए वरदान है, क्योंकि ये सिर्फ युवाओं को ही आत्मनिर्भर नहीं बनाती हैं, बल्कि पूरे देश को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाती हैं। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी ने समाज के प्रति अपना क्या योगदान दिया है? इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश की युवा पीढ़ी ने उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं एवं मूल सैकड़ों वर्षों में विकसित होते हैं और व्यक्तियों के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करते हैं। ऐसे ही उदाहरण के लिए भारत में जातीय व्यवस्था ने हिंदुओं को 4 वर्गों में विभाजित किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज उद्यमिता ने न समाज में हमारे भाईचारे की भावना विकसित की, परंतु समानता को भी बहुत बढ़ावा दिया है। प्रसिद्ध उद्यमी एवं पद्म भूषण सम्मानित धर्मपाल गुलाटी जी, जिनसे तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे, ऐसे ही फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिक्की बंसल एवं कृष्णाचार संस्थापक कृष्णा यादव, इन सभी ने न सिर्फ उद्यमिता में अपना नाम कमाया, बल्कि आज देश के लिए मिसाल कायम की है। किस प्रकार सफलता उन कदमों को चूमती है जो हर संभव प्रयास करते हैं और उस पाने के लिए पूर्ण निष्ठा करते हैं। ऐसे ही कामयाबी किसी को भी मिल सकती है, इसमें कोई छोटा बड़ा या अमीर गरीब नहीं देखा जाता, बस कुछ पाने की चाह होनी चाहिए। इस पर मैं कुछ पंक्ति बोलना चाहूँगी। माना कि बेहद मुश्किल है कठिन रास्ते पर चलना, माना कि बेहद मुश्किल है कठिन रास्ते पर चलना, पर नामुमकिन भी तो नहीं अपनी मंजिल को पाना। न गवार है मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना, न गवार है मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना, जो भी है पाना अपने दम पर है पाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। ऐसी ही महिला उद्यमी से आप सभी को मैं परिचित कराना चाहूँगी। प्रिया पॉल, जिसे आप सभी भली भांति जानते होंगे, इन्होंने राजेंद्र होटल्स की अध्यक्ष हैं इस समय, और सरकार ने भी इनकी हॉस्पिटैलिटी उद्योग में बहुत योगदान दिया है। ऐसे ही बेंगलोर की किरण मजूमदार शाह, जिन्होंने 1978 में बीकॉम की कंपनी शुरू की है। अपने विचारों को मैं आप सभी के समक्ष सिर्फ कुछ पंक्तियों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उद्यमी बनना और उद्यम करने के लिए प्रेरित करना हालात की मांग है, आत्मनिर्भर बनना जीवन की मांग है, और कदम से कदम मिलाकर चलना समय की मांग है। तो आइए हम सभी कदम से कदम मिलाकर प्रकृति के पथ की ओर चलें। तेज दौड़ने वाला खरगोश कुछ पल चलकर हार गया, तेज दौड़ने वाला खरगोश कुछ पल चलकर हार गया, धीरे धीरे कर चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। कौन कहता है कि विकास के लिए सिर्फ गति ही जरूरी है? मित्रों, यदि हम सब अपने साथ साथ मिलकर अपने देश के विकास के लिए एक साथ खड़े हों, तो हमारा देश भी वापस से सोने की चिड़िया बन सकता है। आप सभी सदस्यों का अपने मतों, अपने विचारों तथा अपने प्रश्नों को साझा करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, तथा सभी श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देती हूँ धैर्य के साथ इस पैनल चर्चा में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश। नमस्ते, मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आप करिश्मा वारसी, आप हर्षवर्धन सिंह, आप अरुण यादव एवं आप सूरज चौहान जी। आज पैनल डिस्कशन प्रथम स्थान। आज का जो हमारा विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय एवं नवयुग के उद्यमी
मैं समझ सकता हूँ कि जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो सबके दिमाग में एक सवाल ज़रूर घर कर रहा होगा कि वो है कि एक उद्यमी या फिर एक एंटरप्रेन्योर क्या है। जहाँ तक मेरी समझ है, एक एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति है जो नवाचार के माध्यम से उद्योग की स्थापना करता है एवं उस प्रक्रिया में आने वाले प्रत्येक रिस्क के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता है। एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कोई डिग्री या फिर एलिजिबिलिटी की आवश्यकता नहीं है, मगर आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। और आज के टाइम में जो काम कर रहे हैं समसामयिक जीवन में, आज के अंतर्राष्ट्रीय एवं नवयुग के उद्यमी जो वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, बहुत ही प्रेरणादायक है। और आज के वह युवा जो अपने आप को एक उद्यमी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जैसा कि आप अंतर्राष्ट्रीय एवं नवयुग के उद्यमियों की बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा जेफ बेजोस का, जो Amazon.com के CEO और फाउंडर हैं, जिन्होंने जब वो छोटे बचपन में उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पे लगातार यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को रेवेन्यू जनरेट करने का फॉर्मूला बनाया और उन्होंने उस चीज़ को यूज किया और ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाए जिस पे उन्होंने सबसे पहले किताबों को बेचना शुरू किया और धीरे धीरे करते हुए उन्होंने विश्व के सारे उत्पादों को बेचना शुरू किया और आज विश्व स्तर में सबसे आगे हैं। जेफ बेजोस जी के बारे में मैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहूँगा जिससे नए युग के उद्यमियों को सीखने की आवश्यकता है। जेफ बेजोस जी ने अपना व्यापार एक छोटे से गैरेज से शुरू किया था और उस समय उनके पास ना कोई विशेष प्रकार की डिग्री, ना कोई विशेष प्रकार का प्रशिक्षण था। बावजूद उसके उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपने उद्यमिता को आज विश्व पटल पर स्थापित किया है। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग बात कर रहे हैं, तो मैं एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी पर्सनालिटी से आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हमारा ये जो पैनल इस नाम से भली भांति परिचित होगा, जिनका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक ऐसे उद्यमी है जिन्होंने 10 साल की उम्र में कोई खास डिग्री नहीं की, 10 साल की उम्र में उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी जितना कि एक ग्रेजुएशन का बच्चा नहीं पढ़ता है। उन्होंने 11 साल की उम्र में एक कंप्यूटर गेम को डेवलप किया और उसे $500 में बेचा। उसके बाद उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप Zip2 नामक कंपनी के साथ शुरू किया। अनेकों संघर्ष के बाद उन्होंने अपने इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जिसका टर्नओवर $8 मिलियन था। उसके बाद उनके पास कई हिंड्रेंस आए रास्ते में, मगर वो आगे बढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने X.com कंपनी, एक ट्रांजेक्शन की कंपनी है, उसको लॉन्च किया। उसके बाद उन्होंने एक कंपेटिबिलिटी के साथ कोलैबोरेट करके पेपल से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि पेपल नाम की कंपनी, एक वो भी ट्रांजैक्शन कंपनी है वर्ल्ड वाइड, उसकी स्थापना की। एवं उसके फेलियर के बाद वो फेलियर नहीं रही, मगर उनके शेयर होल्डर्स ने उनके साथ कुछ ऐसे काम किए जिससे उनका शेयर उसमें से निकाल दिया गया। फिर भी उनके पास $22 मिलियन का टर्नओवर था। अगर वो चाहते तो एक अमीर आदमी बन के बैठ सकते थे, मगर उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट में विश्वास करना सीखा था, इन्वेस्टमेंट में फोकस करना सीखा था, उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपेंड करवाया। उसके आगे उन्होंने, अगर मैं बात करूँ तो SpaceX नामक वर्ल्ड वाइड टॉप कंपनी जो एरोनॉटिक्स की है, उसकी स्थापना की। उसकी स्थापना के लिए उन्होंने कोई विशेष डिग्री या किसी संस्थान से जाकर उसकी शिक्षा नहीं ली, उन्होंने अनेकों और हजारों किताबें पढ़ी। उसके बाद उन्होंने SpaceX नामक कंपनी को स्थापित किया और एक बहुत ही प्रेरणादायक आज के नवयुग के उद्यमियों को इनसे काफ़ी कुछ सीखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आप जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्यमियों की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार आज हमारे भारतवर्ष में भी ऐसे बहुत से कुशल और कामयाब उद्यमी हैं। उदाहरण के तौर पर हम टाटा को ले सकते हैं। टाटा समूह ने एक बहुत ही छोटे से व्यवसाय साबुन, डिटर्जेंट साबुन और खाना पकाने वाले तेल से अपना व्यवसाय शुरू किया और आज वह चाय से लेकर 5 स्टार होटल, सुई से लेकर स्टील और लकटकिया नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण कर रहे हैं। फिर चाहे वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशन हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, आज सभी क्षेत्रों में वह एक कुशल उद्यमी के तौर पर हैं। टाटा समूह का जो मुख्य उद्देश्य था वह था समझदारी, जिम्मेदारी और एकता से समाज के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, जिससे कि हर किसी को शरण मिल सके। रतन टाटा जी की एक फिलॉसफी थी, क्या कंपनी के लिए अच्छा है और क्या दुनिया के लिए अच्छा है। मुझे लगता है अगर आज के युवा, आज के नव युवा और आज के उद्योग, आज के जो युवा हैं और नए भारत के युवा हैं, अगर इस फिलॉसफी के साथ काम करें तो मुझे डेफिनेटली यकीन है कि हम विश्व स्तर पर उद्यमिता के क्षेत्र में भारत का झंडा गाड़ सकेंगे। जब आप युवा की बात कर रही हैं तो मैं एक मात्र 9 साल की उम्र के युवा अद्वैत ठाकुर की बात करना चाहूँगा, जिन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में अपनी खुद की एक वेबसाइट बना ली और 12 साल की उम्र में स्टडी रूम में बैठकर उन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनी का स्थापना कर दी और 2015 में उन्होंने एपेक्स इन्फोसिस जैसी एक विशाल कंपनी का स्थापना की जो विश्व स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। इनसे आने वाली पीढ़ियों और उद्यमियों को सीखने और प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने प्रेरणा की बात कर दी है, तो मैं आज आप सभी के सामने एक ऐसे प्रेरणादायक एंटरप्रेन्योर, लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर की बात करना चाहूँगा जिनका नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, संदीप माहेश्वरी जी। संदीप माहेश्वरी जी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो यात्राओं में विश्वास रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, लोगों के जीवन को कैसे हाई क्वालिटी
क्वालिटी दे सके उस पर विचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनकी पर्सनैलिटी ही सिर्फ आपके लिए इंस्पायरिंग होगी, उनकी कंप्लीट लाइफ भी आपके लिए मोटिवेशनल होगी। उन्होंने एज ए फोटोग्राफर अपनी शुरुआत की और मुंबई में उन्होंने देखा कि मॉडल्स के साथ कैसी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को उस स्तर से ऊपर उठाया और आज अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया कि उनका नाम वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आप जिस तरह प्रेरणा की बात कर रहे हैं, इसी तरह हम शहनाज हवेली वाला जी का उदाहरण ले सकते हैं। आज वह दिव्यांग होने के बावजूद एक कुशल और कामयाब उद्यमी हैं और वह मुख्यतः विशेषकर वह दिव्यांग लोगों को हाथ से बने उत्पादों के गुण सिखा रही हैं, उनमें रोजगार के अवसर, उनको रोजगार प्रदान कर रही हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं। आज वह समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य कर रही हैं। बहुत अच्छा बात कही आपने करिश्मा। और आजकल जो उद्यमी है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। ये उद्यमियों की, ये एंटरप्रेन्योर्स की फ्यूचरिस्टिक विजन की बात हो गई है कि देखिए उन्होंने सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा बाईजूस, वेदांतो, अनअकैडमी। खैर वेदांतो तो रिसेंट में आए, लेकिन बाईजूस और अनअकैडमी ऐप ऐसे थे जो बहुत पहले लॉन्च किए गए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हमारे आगे ऐसी भयानक महामारी आने वाली है। इस क्षेत्र में उनके द्वारा चलाया गया पहल शिक्षा इस पेंडेमिक के टाइम में भी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कारगर साबित हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए डिजिटल इंडिया अभियान को ये संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है जिसका एडमायर करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को एक पहल की, उसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत की भी पहल की है और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आज हम युवाओं में रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और उन्हें एक कुशल उद्यमी के रूप में हम उन्हें विश्व स्तर पर पहुंचा सकते हैं। और आज के उद्यमी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से लोकल प्रोडक्ट को किस ग्लोबल स्तर पर पहुँचा सकते हैं और उन्हें एक विश्व पहचान दिला सकते हैं। हम सभी उद्यमियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज के नए युग के उद्यमियों को बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें मुख्य रूप से पूंजी की समस्या होती है। पूंजी की समस्या, सरकार की बहुत सारी योजनाओं के तहत ऐसे नए उद्यमियों को अपनी उद्यमिता को स्थापित करने के लिए अवसर मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और ग्रामीण स्तर पर एक कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, जिससे उस उद्यमी, जो नए युग का उद्यमी जो अपना उद्यमिता स्थापित करना चाहता है, उस तक वो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उद्यमी अगर अपने अनुभव के आधार पे अपनी उद्यमिता को स्थापित करना चाहता है और शुरुआती दौर में असफल होता है, तो ग्रामीण इलाके के समाज के लोग वो उसे हतोत्साहित कर देते हैं और वो अपनी उद्यमिता को स्थापित नहीं कर पाता है। आपने अच्छी बात की बहुत, लेकिन मैं मानता हूँ कि थोड़ी जटिलता है, थोड़ा संघर्ष है, थोड़ी कठिनाई है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के वीर जवान द मोस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड -53 डिग्री सेल्सियस सियाचिन ग्लेशियर पे किस तरीके से दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े हैं, वो अपने संकल्प से और अपने सिद्धि से किस तरीके से पूरी देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अगर वो अपनी पूरी तन्मयता के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं, तो हमें भी इन जटिलता को, इन संघर्ष को, ये जो कमियां हैं उनको किराते करते हुए अपनी उद्यमिता को स्थापित करना चाहिए और संकल्प से सिद्धि के माध्यम से भारत को नए परिवेश में वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ उभरना चाहिए। बिल्कुल हर्षवर्धन जी ने आपने सही कहा। हमें इन समस्याओं और उद्यमियों की जो समस्याएं हो रही हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। कुछ समस्याओं का समाधान है, जैसे पूंजी इकट्ठा करने में उद्यमियों को बहुत दिक्कत होती है, तो हम क्राउड फंडिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सोशल व्यवसाय प्लेटफॉर्म है जैसे कि किकस्टार्टर, इंडीगोगो, जहाँ पर उद्यमी अपने आइडियाज़ और प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करें तो लोग उन पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, वहाँ से वो पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसा आप अरुण जी ने कहा कि लोग उत्पीड़न करते हैं, आलोचना करते हैं, उनके लिए उद्यमियों को इंस्पिरेशनल होना चाहिए, उनको अपने निगेटिव माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। उनको इंस्पिरेशन के लिए अच्छी किताब जैसे रिच डैड पुअर डैड किताबें और कुछ अच्छी मूवी देखनी चाहिए जो एंटरप्रेन्योर्स के लाइफस्टाइल पे बेस्ड है, उनको वहाँ से प्रेरणा लाइज, जैसे बैंड बाजा बारात जिसमें 2 पार्टनर्स ने मिलकर एक अच्छे उद्यमी का काम किया, और गुरु और रॉकेट सिंह जैसे मूवीज़ को देखना चाहिए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने से उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को पैदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आज के उद्यमी वेस्ट मटेरियल का भी प्रयोग करके एक नया स्टार्टअप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बेंगलुरु और चेन्नई की प्लास्टिक से बनी रोड को हम देख सकते हैं। अगर हम एक किलोमीटर स्टेट हाईवे को, प्लास्टिक को अगर हम कैटलिस्ट और तार के साथ मिक्स करके रोड बनाएं तो लगभग हम 2 से 3 हज़ार किलो प्लास्टिक का प्रयोग हम 1 किलोमीटर स्टेट हाईवे के लिए कर सकते हैं। और मुझे लगता है इससे 10 साल के अंतर्गत ही प्लास्टिक की सुविधाओं में, प्लास्टिक की समस्याओं से हमें निजात मिलेगा और हम नए रोजगार लोगों को प्रदान कर सकेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को हम
सुदृढ़ बना सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात करी करिश्मा, लेकिन इसी सीरियल में मैं आपने अभी कुछ देर पहले लोकल प्रोडक्ट के बारे में जिक्र किया था, तो उस लोकल प्रोडक्ट में हाल ही में चलाए गए इसी टाइम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा चलाए गए एक पहल, एक अभियान वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने भारत के ओरिजिनेटेड प्रोडक्ट के विभिन्न सेक्टरों के बारे में बात की है। उन सेक्टरों में उन्होंने खादी पर भी विशेष जोर दिया, एवं विशेष जोर तो उन्होंने सब पे दिया है, लेकिन खादी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि खादी हमारी एक ऐसी परंपरा है जो हमारे राष्ट्रपिता और हमारी स्वतंत्रता संग्राम से आ रही है। उसके बाद हम अगर देखें तो हमें अपने भारत के कुछ प्रोडक्ट्स, हमारे उद्यमियों को इस पे इनकरेज करना चाहिए कि हम कैसे अपने भारत के प्रोडक्ट को वैश्विक ट्रेड पर ले आएँ, जिसमें हम ब्लैक टर्मरिक का उपयोग कर सकते हैं, गोल्डन स्वीट पोटैटो का उपयोग कर सकते हैं, और लोकल फॉर वोकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पर मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाए गए अभियान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नाम लेना चाहूँगा, जिसमें गोरखपुर के टेराकोटा, जिसे GI टैग तक दे दिया गया है, वो हमारी सिर्फ संस्कृति नहीं है, वो रेवेन्यू जनरेट करती है, वो हमारी ऑक्यूपेशनल संस्कृति है। उस ऑक्यूपेशनल कल्चर के थ्रू हज़ारों युवाओं के बीच स्वरोजगार के अवसर प्रदान हुए। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा विषय इस पे बात करने के लिए, और ये काफ़ी अप्रिशिएबल है। और अगर हम आगे उपाय में आता हूँ मैं आपके, अगर आगे हम उपाय पर आते हैं तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है या जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचने में बहुत ही परेशानियाँ हो रही हैं, तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन की कमी कह सकते हैं। तो हमें एडवर्टाइजमेंट की मदद लेनी चाहिए, और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, हमें लगता है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को इन सब योजनाओं में इंक्लूड करना चाहिए, एकेडमिक स्टाफ को इन सब योजनाओं में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये दो स्टाफ ऐसे हैं भारत के जो प्रत्येक स्तर के लोगों तक, रूरल से अर्बन तक डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। तो ये सब योजनाएं स्पष्ट तौर पे फलित होंगी। करिश्मा, आपने अभी अपशिष्ट पदार्थों से उसे कैसे उद्यमियों द्वारा उसे एक नया रूप देके उसे उद्यमिता को स्थापित करने की बात कही। उसमें मुझे अभी मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया हरियाणा के वीरेंद्र यादव का। वीरेंद्र यादव ऐसे उद्यमी हैं जो कृषि के क्षेत्र में अपशिष्ट पदार्थ यानी कि पराली को इकट्ठा करते हुए उसे फैक्ट्री, जैसे पेपर की फैक्ट्री, पेपर मिल की फैक्ट्रियों में ले जाकर दे करके उससे एक वर्ष में लगभग 50 लाख रुपए जो है अपना कमाए। और उसी बात को जोड़ देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा कि पूरे देश के किसानों से मैं आह्वान करता हूं कि वो इस अभियान को, प्रत्येक क्षेत्र के किसान इस अभियान को लागू करते हुए, जिससे दो फायदे होंगे। पहला, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, और दूसरा, उससे पैसा कमाते हुए अपनी उद्यमिता को स्थापित करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने गैर कृषि गतिविधि और आपने वोकल फॉर लोकल की बात की, इससे ये हम इसको आगे बढ़ाते हुए ये केवल आत्मनिर्भर भारत और किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को हम सक्षम बना सकते हैं, उसको हम केवल अपने MSME के माध्यम से जोड़ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग जो हमारे भारत की जो मूल अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरे देश के रोजगार में 45% रोजगार केवल MSME के माध्यम से आता है। जो हम निर्यात करते हैं उसका 50% केवल हमारे MSME के माध्यम से आता है। जो हम अपने उद्योग लगाए हुए हैं उसका 90% केवल MSME के माध्यम से आता है। इस तरीके से हमें अपनी उद्यमिता को आगे बढ़ाते हुए विनिर्माण क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में MSME के माध्यम से उद्यमिता को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे आज के युवा उद्यमी को कार्य करना चाहिए। किस तरीके से हम आज के इस अर्थव्यवस्था में वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करते हुए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को तय कर सके, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं सदी जो होगी वो भारत की सदी होगी, क्योंकि संपूर्ण विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर जैसा कि हम सभी ने काफ़ी डिस्कस किया इस बारे में, तो मुझे लगता है कि भारत में प्रत्येक सेक्टर में, चाहे वो मेडिकल हो, एजुकेशनल हो, ग्रामीण हो, फूड हो, प्रत्येक सेक्टर में उद्यमी अपना कार्य कर रहे हैं, उद्यमिता पनप रही है, और वो ऐसे उन्नति की ओर अग्रसर एक पौधे की तरह है, और वो बहुत ही जल्दी, जैसा कि आपने कहा कि 21वीं सदी में वो बहुत ही जल्दी ऐसा वृक्ष बनेगा जो छाया देने के लिए तत्पर होगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि अब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज रेडी टू बिकम अ मेजर इकोनॉमिक पावर ऑफ द 21st सेंचुरी।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि हमें सभी क्षेत्र में भारत में उद्यमिता के अवसर हैं और इस उद्यमिता के माध्यम से हम अपने मूल जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से महात्मा गांधी जी के स्वरोजगार योजना, नानाजी देशमुख के सर्वभूतो हितेरथ के ग्रामोद्योग योजना के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की धारणा से इस नए उद्यमिता के युद्ध में उद्यमी को आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व के लिए रोटी की टोकरी बनने का काम करेंगे। उत्तराखंड। आज पैनल डिस्कशन में हमारे साथ हैं शुभ अग्रवाल और आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय एवं नए युग का उद्यमी, इंटरनेशनल एंड न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप। सो शुभ, व्हाट यू थिंक अबाउट इंटरनेशनल न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप? So what basically an entrepreneur is, he is a businessman who starts his own business and particularly on financial risks. But what we should understand is that he is not just a businessman, he is a transformer of the society. A businessman's job is not just to earn profits, he transforms the market. He creates supply, he creates demand as well, and he is the supplier of the commodities. We should not consider an entrepreneur as just a profit-earning filthy man. They work for the social causes too. We can take the example of Dharmil Seth, CEO and founder member of Farmizi. He is working with a campaign called Ekagrata, which aims at making the country this poverty-free and corruption-free. Okay, so what's your idea? So the idea which I use, the name which I use for my idea is Profitable Packaging Solutions, and the tagline is Solutions Without Confusions. We are in a decade which is about to see some radical and progressive changes in the industrial sector, and we have been very privileged to be a part of a movement called Vocal for Local. And this movement can be made successful only with the help of new manufacturers. But there is a problem in the Indian market which the new manufacturers are facing. That is regarding packaging. Every manufacturer is a master of the goods that he produces, but he is not a master of packaging. He has to compete with the established MNCs and the existing manufacturers in the country. But the Indian market has a problem of high one-time costs for packaging. It includes cylinders, offset plates, the dies which have to be made for packaging. And these are the problems that are faced by manufacturers these days. A recent example was seen during the lockdown phase of the pandemic. There was a huge demand for sanitizers, and a lot of pharmaceutical firms switched to making sanitizers. They had all the raw materials, the bottles to pack them, but they lacked in the flip-top caps which are used in sanitizer bottles. Alongside the plastic for injection molding firms, they started to producing the flip-top caps which are in huge demand. Both of the trades could have profited a lot from the business, but they lacked contacts with each other. What our venture supports is that the manufacturers should be linked to the plate makers, the cylinder makers, the designers, who are the background or the hidden heroes of this industry. And they should get the recognition too. They'll profit from their business, and the manufacturers will get their jobs done at low costs. How do you look Indian market for new entrepreneur? For a new entrepreneur, the market is widely open. There are a lot of trades where people can indulge in. The online business is not yet established in the Indian market. We have all the companies from international, they are all the MNCs which are set up in India. There's a huge scope for new entrepreneurs in the Indian market. Thank you. Thank you. नमस्कार आप सभी को मेरा। चलिए कुछ हिंदी में भी बात करते हैं, अच्छा लगेगा। मेरा नाम पंकज पांडे है, मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं एक गांव में रहता हूँ जिसका नाम गुरुड़ा है, क्योंकि अगर बिजनेसमैन बनना है तो गांव का नाम भी आना चाहिए, क्योंकि हम गांव से हैं तो गांव से शुरुआत होगी। पिथौरागढ़ तो बहुत बड़ा है, तो मैं गुरुड़ा का निवासी हूँ, एक गांव का। तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि मैं गाँव से शायद पहला आदमी हूँगा, तो ये सबसे बड़ी बिजनेसमैन की यही बात है। तो जो टॉपिक है आज उद्यमी है, इंग्लिश में शायद कुछ बोलते होंगे लेकिन मुझे उद्यमी पता है तो मैं उद्यमी में बात करूँगा। उद्यमी होता क्या है, कहाँ से वर्ड आया, करता क्या है, ये काफ़ी एक पजल टाइप का है। लेकिन उद्यमी वह होता है, वो रिएक्ट तब करता है जब सभी सोए रहते हैं या जब कोई नहीं करता है, उस समय जो उद्यमी होता है तब रिएक्ट करता है। वो एक संरचना बनाता है, एक प्लानिंग बनाता है, आइडियाओं का एक समूह बनाता है
और उसी वक्त मार्केट में लाता है जब उसको ज़रूरत होती है। मैं सिर्फ एक डेमो देना चाहूँगा, एक एग्जांपल। हम सभी लोगों को पता है नोटबंदी हुई थी, सभी लोग परेशान थे, बैंकों में लाइन लगा रहे थे, कैसे अपने नोट चेंज करें, कैसे क्या करें। उस समय जो पेटीएम था, गूगल पे था, उसने अपना रोल वहाँ पे अदा किया था। किसी उद्यमी ने, किसी दिमाग वाले ने ही वो बनाया होगा, लेकिन उस समय तक किसी पब्लिक को पता नहीं था कि इसका यूज़ कैसे करना है, क्या करना है। सभी लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन पेटीएम, गूगल पे, ऐसे सब ऑनलाइन जो भी ये चीज़ें थी उसी समय मौजूद थी, सबके पास मौजूद थी। यूज़ तब आया जब उसका वक्त हुआ। उद्यमी वही है, वही बात बोलते हैं, उद्यमी वही है, वो समय आने पर अपना जब दिखाता है, पत्ते दिखाता है, तो अपनी बाजी पहले ही जीत चुका होता है। There is no special need for new idea. We can utilize the old ideas with an improved service. We can add up. Like as I have told the example of Zomato and Swiggy. So earlier taxis were existing like Ola, and there is no company like Ola is existing earlier, but they have just changed the problem into opportunity. Like somewhere if we go, then if all on railway station, like ढेर सारे टैक्सी वाले आ जाते हैं, भैया कहाँ चलोगे, कहाँ चलोगे। अगर कोई स्ट्रेंजर जा रहा है, ही डोंट नो अबाउट दैट प्लेस, देन दे जस्ट मतलब वो उससे 500 की जगह 2000 ले लेते, तो उसे पता नहीं था पहले। लेकिन नाउ अडेज इफ वी चेक ऑन ओला, देन वॉट एवर इज अ प्राइस, and no one can't cheat us. So he just changed. Actually, this is a problem faced by the Ola owner. Once he was traveling from Mumbai to Pune, and during his journey, the taxi stopped, and he asked for more money, extra money, and he denied. Then he just leave him in between the way and gone. So this strikes in his mind, and he just make something like, first he tried for Ola trips to plan for vacation, but he failed, and then he started the Ola cabs, and nowadays we know that Ola cab is doing business in more than 24 countries, and it is expanding. So this is he makes problem into opportunities. We does not need so many new ideas, or we do not need to copy idea from other country. Whatever is a problem here in our country, we can just understand it, the need of user, what user exactly want, and in suitable price. Like my friend said about Ritesh. Ritesh is a owner of Oyo. So firstly he started he start taking renting a house, 10 to 15 houses only, and after when he get fellowship from Thai fellowship of $1 lakh, then he just expand his business to almost all over the India. Not only in India it is at number 1, and in world it is in top 10. So he just means using these services, no one can cheat you. You can just go and check about the rate, and one another thing that I would like to mention is, we have to make opportunity from the problem. Whatever the problem society is facing, we need to study that problem. We need to see some stats and data, and after calculating this, we need to add a extra chain, extra point in between problem and solution. And if you get the exact solution in favorable price, then you will be successful. Thank you.